وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ کرغزستان سے بعد واپسی. ذرائع کا کہنا ہے محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ حکام سے ملاقات کے بعد آج تہران جائیں گے. محسن نقوی ایرانی سپریم لیڈر کے لیے خصوصی پیغام لے کر جا رہے ہیں. گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل کل سجے گا. 24 حلقوں کے ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا گلگت بلتستان کے عوام کے حق ملکیت کا خواب پیپلز پارٹی نے حقیقت میں بدل دیا. تاریخی قانون سازی سے 28,000 مربع کلومیٹر زمین کے مالکانہ حقوق کو قانونی تحفظ دیا. اگلا مرحلہ زمین کے مالکانہ حقوق کے قانون پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کا ہے. کوئی دوسری جماعت آئی تو یہ قانون اٹھا کر پھینک دے گی. پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ دیگر صوبوں کی طرح جی بی کو بھی 18ویں ترمیم کا تحفظ ملے. جی بی کے عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا. گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر کی آوازیں آ رہی ہیں. نون لیگ کو ہمیشہ عوام کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں گلگت بلتستان میں نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی. مخالفین نون لیگ پر کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگتے ہیں. گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک 0 ہے. نون لیگ کا مقابلہ کارکردگی سے کریں. جھوٹ، پروپیگنڈا، ناکام سیاسی چالیں ہیں. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں گلگت کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں گے. پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے الیکشن میں کلین سویپ کرے گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں صفدر عوام کی اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان کا جواب دوں. کوئی کام نہیں تھا تو ان کو گلگت بھیج دیا گیا. جس طرح کی زبان استعمال کی گئی شرم کا مقام ہے. ایم کیو ایم والوں کا عوام سنجیدہ نہیں لیتے تو ہم کیا لیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا خصوصی اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا. مظفر آباد پولیس نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 72 افراد کو گرفتار کر لیا. گرفتار افراد پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں. ترجمان پولیس کا کہنا ہے احتجاج کی آڑ میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. امن و امان خراب کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی درست اقدام ہے. آج آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال بحال ہے. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر اور سابق اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی شاہ غلام قادر کہتے ہیں پولیس اچھے انداز میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے تاکہ آزاد کشمیر میں غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات ہو سکیں. عوام سے گزارش ہے الیکشن کی تیاری کریں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت سرمایہ کاری کے فروغ سے متعلق اجلاس. نجکاری پروگرام آگے بڑھانے اور معاشی مواقع کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا سرمایہ کاری کا فروغ، معاشی ترقی تیز کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. حکومت کا بجٹ سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد نہ کرانا پیپلز پارٹی اور حکومت میں بجٹ پر ڈیڈ لاک کی وجہ. ذرائع کا کہنا ہے حکومت معاہدے کے تحت پی پی کو بجٹ تفصیلات فراہمی کی پابند ہے. پیپلز پارٹی نے حکومت سے متعدد بار بجٹ کا تفصیلی مسودہ مانگا لیکن حکومت پی ایس ڈی پی ٹیکسز کی تفصیلات ظاہر نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے حکومت ٹیکسز لیوی سے متعلق حقائق سے آگاہ نہیں کر رہی. جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں وہ گاؤں یا کہیں بھی سولر لگائیں اور شہر میں فائدہ اٹھائیں. سولر سے بجلی پیدا کرنے والوں کے لیے خصوصی اسکیم کی تیاری. جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں وہ گاؤں یا کسی بھی مقام پر سولر لگا کر فائدہ اٹھا سکیں گے. راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے صدر عثمان شوکت کی آوائی نیوز سے بات چیت. کہا شہروں میں فلیٹ کے مالکان اپنے گاؤں میں سولر لگا کر شہر کے فلیٹ میں سولر کریڈٹ لے سکیں گے. وزیر اعظم نے سولر ویلنگ کی تیاری کی ہدایت کی ہے. سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں حکومت کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس کی سماعت مکمل. 2 رکنی بینچ نے دلائل مکمل ہونے کے بعد ریفرنس کے جوابات صدر کو ارسال کر دیے. آزاد کشمیر حکومت نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ سے قانونی رائے مانگی ہے.
हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया लेकिन उस पर लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपए कमी के बाद 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, जब से लेवी नाफिज हुई है 8,066 अरब रुपए कौम से वसूल किए जा चुके हैं। हम पहिया जाम और हड़ताल पर मुशावरत कर रही हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकिरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आज तेहरान जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है मोहसिन नकवी तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला ईरानी क़यादत को अहम पैगाम पहुंचाएंगे। अमरीका का ईरान में गौरुक और जजीरा कश्म में तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है आपने हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक लिया। ईरानी हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। पासदाराने इनकलाब का कहना है अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। आपने हुर्मुज़ की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें। बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। मुल्क में फजाई इंतबाह जारी। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है शहरियों और रिहायशियों से दरख्वास्त है पुरसुकून रहें और करीबी महफूज मकाम पर चले जाएं। कुवैत का कहना है फजाई दिफा का निज़ाम मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक रहा है। कुवैती फौज ने मजीद कहा कि धमाकों की आवाजें फजाई दिफा के निज़ाम की जानिब से अहदाफ को निशाना बनाए जाने की वजह से हैं। शहरियों से अपील है हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। ईरान ने जंग बंदी डील पर इत्तफाक नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप का एनबीसी को इंटरव्यू। कहा, ईरान के पास बिलाखिर मुआहरे के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जंग को हल करने में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। यकीन है ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान अमेरिका के साथ जंग मुज़ाकरात में लबनान को सौदेबाजी के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को लबनान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का CNN को इंटरव्यू। कहा, ईरान के मफादात की कीमत लबनान के अवाम चुका रहे हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग से थक चुके हैं। हिजबुल्लाह से भी कहा था इसराइल के साथ तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। यह आपका नहीं हमारा मुल्क है। आपका काम नहीं कि आप हमारे मुल्क में मुदाखलत करें। अगर लेबनान वाकई ईरान के लिए सौदेबाजी का मोहरा होता तो बहुत पहले कोई मुआहदा हो चुका होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयानात से तो ऐसा लगता है जैसे ईरान ने ही लेबनान के 5वें हिस्से पर कब्जा कर रखा हो, 1/4 लेबनानियों को बेघर किया हो और रोजाना उनके मुल्क पर बमबारी कर रहा हो। लेबनान को उसके असल दुश्मन से निजात दिलाएं। फितना खारिज को अफगानिस्तान में मौजूद कमांडरों से माली मुआवनत मिलती है। ये खारिजी भत्ताखोरी, गाड़ियां छीनने, अगवा बराए तावान में मुलव्वस हैं। खारिजी कमांडर शरीयत के नफाज और जहाद के नाम पर नौजवान को बरगलाते हैं। गिरफ्तार खारिजी उमरदीन और जज्बा के इतराफी बयान ने फितना खारिज का गुमराहकुन बयानिया बेनकाब कर दिया। खारिजी उमरदीन ने बताया खारिजी कमांडर्स के साथ 60 से 70 अफगानी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग की। खारिजी मनशियात की आदि और मरकज के अंदर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। नौजवानों से अपील है वो फितना खारिज के झूठे दावों से बचें। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मनशियात और नशा और अशिया की रोकथाम के लिए मुआहदा। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिश्केश में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स की खत्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल का केस। तफ्तीशी अफसर ने उबूरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। चालान के मुताबिक मुद्दई मुकदमा पीर मोहम्मद रोड से गुजर रहा था।
इसी दौरान फुटपाथ पर एक शख्स की लाश मिली जहां लोग जमा थे। पुलिस को मुआयने के दौरान मकतूल की जेब से एक डिबिया मिली है जिस पर क्वीन मैडम पिंकी डॉन लिखा हुआ था। मुलजिमा के खिलाफ ताहाल इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। शोबा प्रोसिक्यूशन का उबूरी चालान की स्क्रूटनी का फैसला। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की वॉइस रिकॉर्डिंग्स, पैगामात और डिजिटल शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजने का हुक्म। कराची पुलिस ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया दौरान तफ्तीश मुलज़िमा ने वॉइस रिकॉर्डिंग, मैसेजेस और डिजिटल शवाहिद से इनकार किया। शवाहिद का फॉरेंसिक कराने का हुक्म दिया जाए ताकि मुलज़िमा की आवाज़ की तस्दीक हो सके। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी पर ड्रामा बनाने की मुखालिफत कर दी। हिना परवेज भट्ट का कहना है पिंकी पर वाकई कोई ड्रामा बनाया जा रहा है तो ये इंतहाई शर्मनाक और छिछोरी हरकत है। पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं जिस पर ड्रामा बनाया जाए। ये माशरे में मुस्बत किरदार अदा करने वाले खवातीन की बेइज्जती है। हम कब तक व्यूअरशिप और पैसे के लिए ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाकर पेश करते रहेंगे। कराची दिल के मरीजों का शहर बनने लगा। रोजाना 103 अफराद को दिल का दौरा पड़ता है, जिनमें 10 मरीजों की उम्र 40 साल से कम और 2 मरीज 30 साल से कम उम्र के हैं। कार्डिक रजिस्ट्री की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि शहर कायद में सिर्फ 2025 में 74,347 अफराद को दिल का दौरा पड़ा। सिंध में रेबीज का एक और केस रिपोर्ट। हैदराबाद में कुत्ते के काटने की शिकार खातून को जिला अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल हुकाम का कहना है 45 साल मरीजा में हाइड्रोफोबिया समेत रेबीज की दीगर अलामात की तस्दीक हुई है। रवा बरस सिंध में कुत्ते के काटने के 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके। कराची में कुत्ते के काटने के बायस 10 अमवात हो चुकी। कराची पीडी पुलिस के हाथों मुकाबले में गिरफ्तार जख्मी मुलजिम नूर वली 90 लाख रुपए की डकैती का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस का कहना है 14 फरवरी को 2 मुलजिमान ने सोलर इन्वर्टर डीलर के राइडर से कैश लूटा था। पहले से गिरफ्तार मुलजिम बिलाल और शीना सोलर इन्वर्टर डीलर का 10 साल से मुलाजिम था। मुलजिमान की निशानदही पर 45 लाख कैश बरामद कर लिया। फ्रीडम फ्लोटिला के समाजी कारकुनों से बदसलूकी। फ्रांस ने इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा शुरू कर दिया। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर ऑफिस के मुताबिक इसराइली बदसलूकी के खिलाफ तहकीकात फ्रांसीसी हुकूमत की दरखास्त पर शुरू की गई। आयरलैंड ने इसराइल के 2 इंतहा पसंद मुजरा के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का सालाना उर्स शुरू हो गया। गवर्नर सर निहाल हाशमी ने मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का आगाज किया। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अंडर 18 एशियन हॉकी कप में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अदील, हैदर और अजीज ने एक-एक गोल स्कोर किया।